now it is pretty much out there with Sakshi Malik tweeting that she is very much part of the protest, although she is also going to be doing her duty as a government servant, and she is going to be joining her services with the Northern Railways. What does this one make of this decision by all the wrestlers? In this case, also Vinesh Phogat and Bajrang Punia, they are also going to be resuming their services with the Railways. What happens to the protests next? You know, the only conclusion we can draw is that they're resuming their government jobs, by virtue of which they cannot be part of any sit-in protests any longer. Now, since May 28, when their protest was broken up, their protest site was dismantled or removed from Jantar Mantar by the Delhi police, we haven't quite heard from them on where they plan to recontinue their sit-in protest. And I think what this means is, what Sakshi Malik's her own statement is projecting is that they will continue to do their government job while they continue to fight for justice in this case. But I think the only conclusion we can draw is that they will possibly not come back for a sit-in protest, as the government has been asking them not to, while maybe the charge sheet is filed, or till they make up their mind again of whether the case is progressing the manner in which it should progress. So I think in some senses it is blinking from the wrestlers, in the sense that the main bone of contention was, and what the government and the minister concerned were saying, is that the process of law is ongoing. Please trust that process and show some patience. There is no need for you to be doing this sit-in protest anymore. And I think that is what we can maybe conclude, that the wrestlers no longer will come back for a sit-in protest. What happens to that deadline that the Khap Panchayat have given, the Ticket brothers have given to the government? Frankly, we don't know about that, because they had given 9 days to the government to arrest Brij Bhushan Sharan. What happens is conjecture. But as far as the sit-in protest of the wrestlers is concerned, it looks like they will not return, at least for the time being. Okay, and that's an important point that you made, Shivani. In fact, let me actually go back to my colleague Nikhil. He is with Sakshi Malik's husband Satyavrat at the moment. Yes, Nikhil. So, Greha, this is exclusive for CNN News 18. Satyavrat is now joining us for the very first time amid all the reports of that Sakshi Malik is no more a part of the protest. Sir, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. मुश्किल समय है, आप लोग भी बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं. आपका ट्वीट हमने देखा, लेकिन कंफ्यूजन ये निकल के आ रहा है कि रेलवे की नौकरी दोबारा ज्वाइन कर दिए, तो क्या प्रोटेस्ट में शामिल हो सकती हैं, नहीं हो सकती है? कुछ अगर आप इस पे क्लैरिफाई करना चाहें. जी देखिए, हम लगातार हमारी जो ये लड़ाई है ये जारी है. हमारी अभी आगे की स्ट्रेटेजीज वगैरह जो अभी है वो बन रही हैं. तब तक कुछ 1-2 काम था, वो इन्होंने आग्रह किया उनके जो भी साथ हैं. तो इस तरह के प्रोपेगेंडे जो अकल से ही फैलाए जा रहे हैं कि हम अमित शाह के घर लड्डू खाया है, आज कुछ और लड़के ने वापस ले लिए. 3 बैक टू बैक गलत न्यूज जो दिखाई जा रही टीवी पे. तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, प्लीज पूरी सुनिए, आप सबसे अनुरोध करता हूं, इस तरह के प्रोपेगेंडे को दिखा के आप जनता में नाराजगी और मत बढ़ाइए. ये सभी की सभी न्यूज गलत है. सत्यव्रत, आपने सही बोला, कुछ चैनल बेशक गलत खबर दिखा सकते हैं. हम यही प्रयास करते हैं कि आपसे कंफर्म करके ही जो भी चीज है उसको आगे उपयोग में लाएं. अभी जैसा कि आपने बताया कि साक्षी मलिक कुछ अपना काम था छोटा मोटा वो करने गई हैं, और रेलवे मिनिस्ट्री ऑफिशियली ये कह रही है कि ज्वाइन कर लिया है. लेकिन आपसे समझना चाहते हैं निटी ग्रिटीज या हल्की फुल्की बारीकियां जो होती हैं, एक नौकरी पे रहते हुए क्या प्रोटेस्ट किया जा सकता है? ये समझना अगर चाहें तो क्या प्रोटेस्ट कर सकते हैं? जंतर मंतर से उठा के भगा दिया हमको. अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? प्रोटेस्ट कर रहे थे जब लगातार हम लीव पे थे, हमने अपने पूरे लेटर लिख रखे थे. अब हम आगे की तैयारी कर रहे हैं. आपने घर पे बैठा दिया हमारे को. जंतर मंतर के बाहर इतनी सारी पुलिस जो है तैयार कर दी, तो कहाँ है प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट तो हमारे उठा के उस दिन 28 तारीख को हमारे साथ किस तरह की जाति करी गई थी वो पूरे देश ने देखा था. हमें जाने दो, जंतर मंतर पे वापस प्रोटेस्ट करने हम नहीं जाएंगे कहीं भी. इसके आगे अब क्या? क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि ज्वाइन कर लिया है, तो यानी कि एक चीज साफ गोई से अगर आप बोल पाए कि आगे आप बैठेंगे नहीं बैठेंगे, उस वे में अगर कुछ क्लैरिफाई आप कर पाए तो क्या बैठ सकते हैं? संभावना है? इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो करना पड़े हम सब करेंगे. और सब लोग अभी एक साथ हैं, क्योंकि दूसरी खबर ये भी आ रही है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं इसलिए मैं चाह रहा हूं अगर 1 मिनट आप और दे दें, प्रॉपर आप ही क्लैरिफाई कर पाएंगे, आपको सारी जानकारी है. दूसरी रिपोर्ट ये भी आ रही है कि बाकी के जो 3 रेसलर्स हैं जिनको भी रेलवे की नौकरी मिली है, वो लोग भी खबर ये आ रही है कि शायद से छोड़ सकते हैं, इस चीज पे विचार कर रहे हैं. उस पर क्या कुछ अगर आप बताना.
किस चीज को छोड़ सकते हैं? कि प्रोटेस्ट आंदोलन नहीं करेंगे और रेलवे की नौकरी दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस पर अगर आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहते देखिए, अभी हम फिजिकली प्रोटेस्ट पे बैठे ही नहीं है, हमारे को वहां से हटा दिया गया, तो प्रोटेस्ट नहीं चल रहा, लेकिन आंदोलन हमारा जारी है। ये बात समझिए, पूरे देश को ये बात समझनी पड़ेगी, आंदोलन लगातार जारी है। आगे जैसे भी कोई हम अपनी प्लान बनाएंगे, जैसे ही प्रोटेस्ट पे वापस जाएंगे, उसके अनुसार से हमारा लीगल तरीका उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा। एक हाईएस्ट अथॉरिटी से आपकी मीटिंग हुई थी, क्या इनकंक्लूसिव निकली? क्योंकि कुछ बातें आप लोगों ने की, क्या वो मानी गई, नहीं मानी गई? उस पर इनडायरेक्टली अगर आप कुछ बता पाओ। अभी तक हमारी कोई बात नहीं मानी गई है, ना हमारा कोई भी हमारी सहमति किसी चीज पे बनी है। आखिरी सवाल, 9 जून तक का जो समय था वो दोबारा 9 जून के बाद कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है, और दिल्ली पुलिस, हाँ ये बात तो बहुत जरूरी है, ये तो छोड़ी नहीं जा सकती कि दिल्ली पुलिस, एक सूत्रों के हवाले से आपने भी सुना होगा, ये खबर आ रही है कि कुछ एविडेंस ही नहीं मिले हैं कोरोबोरेटिव टाइप से, या कुछ भी कंक्लूसिव कुछ मिला नहीं है, तो दिल्ली पुलिस हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दे। उस केस में फिर क्या, उसको कैसे ले रहे हैं रेस्लर्स? आप पहले दिल्ली पुलिस से पूछिए, एक बार वो ट्वीट कर रहे हैं, फिर काट रहे हैं, फिर उसको हटा दे रहे हैं, तो उनका कोई नजरिया सही नहीं है। दिल्ली पुलिस का कैसा इसमें रहा है स्टार्टिंग से ही, वो पूरा देश देख रहा है, तो उनके ट्वीट से कुछ नहीं होता। हमारे और भी बहुत खबर है, हमारे पक्ष में कितने बयान हुए हैं, कितनी गवाही हुई है, वो सब न्यूज़ पे भी चली हैं, और कोई सबूत नहीं मिला है इस प्रकार के झूठे। ये केवल जो देश के लोग जो इतने भारी संख्या में हमारे साथ जुड़ गए हैं, केवल उनको हमसे हटाने की 2-3 दिन से हर न्यूज में लगातार साजिश चल रही है। आगे अब क्या देखने को मिल सकता है? आगे जी ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। Okay, so this was first an exclusive Satyavrat, who is husband to Sakshi Malik. He has clarified over all the reports which were doing Yes. rounds on the social media. He has clarified that the protest will continue to take place, and they are adamant on their demand that the Brij Bhushan Sharan Singh should be arrested at the earliest. Back to you. Thank you so much for that exclusive interview of Sakshi Malik's husband, Satyavrat, there, Nikhil.